Good morning, student. Our topic is continue financial statement of companies. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। नाउ टू कंटिन्यू टॉपिक, टुडे वी आर डिस्कसिंग about uses of financial statements and their limitations, और साथ ही वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। Financial statement of a company performs several important functions. Firstly, they reflect the true state of affairs of the company. कंपनी कैसे कारोबार कर रही है उसकी सही पिक्चर हमारे सामने लाते हैं। They also help in taking important financial information from shareholders and investors to government and creditors. Many people use all type of information. Let's us understand some uses of financial statement. Uses: bridging the gap in the management. Financial statement basically reflects a company's financial performance. किसी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करते हैं। They show profit and liabilities of the business. They also show how successful a company's decision have been made. Since shareholders have access to these statements, they can guess their performance. This further help in bridging the gap between the lapse in the management and expectations of honor. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिपोर्ट की तरह होते हैं, दैट्स वाई दे ब्रिजेस द गैप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑनर्स। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है ऑनर्स को, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के वो पूरी कर सकते हैं। Availing credit from lenders. Every business needs to borrow funds for functioning. They have to rely on lenders like banks and financial institutions for this purpose. The financial statements play a huge role in this purpose, since they show a company's liability, debt, and profit. Investor can use them to make informed decision. हर एक बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत होती है और समटाइम्स ये फंड्स उधार लिए जाते हैं बैंकर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट, द लेंडर्स, दैट इज बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड activity of the business. It is possible only means of financial statements. Use for investor. Investors also extensively use a company's financial statement to assess its finances. That helps them figure out how the company's solvency will be in a longer term. Thus, the better a company's financial position is, the greater the investment it will receive. एक इन्वेस्टर देखना चाहता है कि उसका पैसा सेव है या नहीं,
या उसको डिसीजन बदल के अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बदल देना चाहिए। ये डिसीजन लेने की क्षमता एक इन्वेस्टर्स को तभी आती है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी के देखता है। उसको बेहतर समझने के लिए ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। यूज फॉर गवर्नमेंट। Governmental policies pertaining to corporate depends heavily on financial statements. This is because these statements depicts how companies are functioning in general. The government can use this information to decide taxation and regulatory policies. Pay taxes honestly to the government. गवर्नमेंट को कैसे विश्वास होगा कि आपने टैक्स ऑनेस्टली पे किया है? वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चेक करेगी, ऑडिटेड चेक करेगी। और दूसरे जो कानूनी नीतियां हैं उनको भी फॉलो कराने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समटाइम्स गवर्नमेंट चेक करती है। यूज टू स्टॉक एक्सचेंज। Regulatory bodies like SEBI and stock exchange like BSE and NSE also use financial statement for many reasons. SEBI can assess a company's internal matters using them to assure the protection of investors. Even stock advisors requires them to frame their quotes. They are also a great source of information for stock traders and investors. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेबी भी चेक करती है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है। स्टॉक एक्सचेंज भी चेक करते हैं लाइक बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके प्रोटेक्शन को देखने के लिए सेबी समटाइम्स गाइडलाइंस भी इशू करती है और उसी के हिसाब से फिर चेक किया जाता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। Information on investments. The shareholder of a company rely on these statements to understand how their investments are paying off. If a company is earning profit, they might decide to invest even more money. On the contrary, a stagnant profit or even losses will prompt them to put out. Despite all these uses of financial statement, there are some limitations also. Information on investments, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी के अंदर सेव है या नहीं। यदि सेफ है तो वो और अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यदि सेफ नहीं है, प्रॉफिट स्टैग्नेट है और लॉस हो रहा है, तो वो पैसे को निकाल भी सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी की जाएगी और वो इन्वेस्टर्स को अवेलेबल होंगे। Despite all these uses, there are some limitations. These are as follows. Limitation of financial statement. Not a reflection of present financial position. वर्तमान परिस्थिति को नहीं दिखाते हैं। कैसे?
Financial statements do not show how well a company is performing in a present time. This is because they are made at the end of every financial year. 12 महीनों के बाद बनाए जाते हैं. Hence, they only depicts performance of the previous 12 months. Even the value of assets and liability changes as money's purchasing power fluctuations. तो ट्रू पोजीशन नहीं दिखाते हैं, सही पोजीशन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज हो सकती है और अकाउंट साल के अंत में बनाए जाते हैं. Possibility of bias. Financial statements might not always be an accurate representation of a company. This happens because they are based on several personal judgment, conventions, and internal policies of accountants. Bias की possibility है, यानी जो अकाउंटेंट है जो बना रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कुछ तथ्य छुपा सकता है. ना चाहते हुए भी कई बार ये तथ्य छुपाए जाते हैं, जैसे कि कंपनी के पर्सनल कन्वेंशंस और उसकी पॉलिसीज, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे. नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन. ढेर सारी जानकारी छुपा ली जाती है. Accountants might skip a lot of vital information while making financial statement. For example, the nature of agreement signed by the company is important information, but it is never mentioned in annual statement. किसके साथ क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ये बात बहुत मायने रखती है, लेकिन इस बात का उल्लेख कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होता. Lack of qualitative information. Although companies portray their numbers and finances in annual statement, a lot of qualitative data is skipped. Hence, detail of companies, industrial relations, employees' productivity, etc. are generally missing from these statements. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये पक्का है, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मॉनेटरी जो भी कुछ होता है, मॉनेटरी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सबको तो स्थान दिया जाता है, लेकिन क्वालिटेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं दी जाती. जैसे कंपनी के इंडस्ट्रीज़ में दूसरों से क्या रिलेशन है, एम्प्लॉइज़ की क्या प्रोडक्टिविटी है, कितने कॉम्पिटिटिव हैं एम्प्लॉइज़, ये तमाम बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में नहीं दी रहती हैं. लैक ऑफ डिटेल्स. Financial statement might state the total value of asset, but they do not disclose the nature of these assets. Similarly, a lot of minute details like these do not find mention. एसेट की वैल्यूज दी रहती है, अकाउंट्स की हर एक की वैल्यूज दी रहती है, उनका नेचर क्या है, वो कितने यूज़फुल हैं, इन तमाम बातों की जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होती. तो ये थे यूजेस यानी कि इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस.
अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। किस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का है। नंबर ऑफ टाइम्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो देखिए किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देना है और किस तरह से आपको आंसर देना है। Question 1. Under which measure heads and subheads the following items will be placed in a balance sheet of a company as per revised schedule 6 part 1 of the Companies Act 1956। रिवाइज से इसका मतलब है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 2013 में कंपनी का एक्ट रिवाइज हुआ था। पहले शेड्यूल 6 पार्ट 1 में ये तमाम बातें रहती थी। 2013 में शेड्यूल 3 पार्ट 1 में ये तमाम बातें हैं। आइटम्स देखिए क्वेश्चन में कैसे दिए रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टाइम्स 6 आइटम्स ही दिए रहते हैं। हाफ मार्क्स ईच होता है। कई बार 3 आइटम्स 1 मार्क्स ईच भी हो सकता है। आइटम्स दिए हैं एक्रूड इनकम, लूज टूल्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, अनपेड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। प्रेजेंटेशन देखिए आंसर आपको कैसे देना है। 4 कॉलम बनाने हैं। सीरियल नंबर, आइटम्स, मेजर हेड एंड सब हेड। पहले 2 कॉलम आपके क्वेश्चन से ही तैयार हो जाएंगे। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। आइटम्स जैसे दिए थे वही लिख देना है। एक्रूड इनकम, लूज टूल्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, अनपेड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। अब इनकी मेजर हेड्स आपको फर्स्ट वीडियो में बताए गए थे। कंपनी का फॉर्मेट बताया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेजर हेड में आइटम रखने हैं। मेजर हेड एक्रूड इनकम जो है वो करंट एसेट्स में आती है। एक्रूड इनकम का मीनिंग ही है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन 12 मंथ्स में मिल ही जाएगी, तो मेजर हेड करंट एसेट होगा। और सब हेडिंग होगी इसकी अदर करंट एसेट। सेकंड आइटम लूज टूल्स। लूज टूल्स मीन्स कल पुर्जे वगैरह करंट एसेट्स हैं। और सब हेडिंग होता है इनका इन्वेंट्रीज, स्टॉक। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, कर्मचारियों के फायदे के लिए प्रोविजन करना। चूंकि एम्प्लॉयज वर्षों बाद रिटायर होता है, इसलिए नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म एसेट हुई और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ये आएगा। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड ड्यू बट नॉट पेड, तो ये करंट लायबिलिटीज है क्योंकि आपको 12 महीने के अंदर देना ही होगा। और सब हेडिंग इसका अदर करंट लायबिलिटीज होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म यानी फॉर 12 मंथ्स, तो ये भी करंट लायबिलिटीज हुआ। सब हेडिंग इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म नाम से ही क्लियर है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए हुआ, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज हुआ क्योंकि लॉन्ग टर्म है और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा।
देखिए क्वेश्चन 2, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अंडर विच सब हेड बिल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी वही एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल पार्ट 6 रिवाइज शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 and now schedule 3 part 1 of companies act 2013। आइटम्स दिए हैं, कैपिटल रिजर्व, बॉन्ड्स, loans repayable on demand, vehicles, goodwill, loose tools। सॉल्यूशन देखिए, प्रेजेंटेशन। पहले दो कॉलम आपको क्वेश्चन से ही भर लेने हैं, सीरियल नंबर एंड आइटम्स। आइटम्स लिख लिए, कैपिटल रिजर्व, बॉन्ड्स, लोन पेबल ऑन डिमांड, व्हीकल्स, गुडविल, लूज टूल्स। चूंकि ओनली सब हेड ही पूछा गया था, मेन हेड नहीं पूछा गया था, तो मेजर हेडिंग आपको नहीं देनी है। कैपिटल रिजर्व जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। बॉन्ड्स मोर देन 12 मंथ्स के लिए होते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएंगे। लोन पेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड लगा है, यानी कि विद इन 1 ईयर पे करना होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। व्हीकल्स, कार, स्कूटर वगैरह, तो ये फिक्स्ड एसेट हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट मिलता है, टेंजेबल एसेट है। गुडविल फिक्स्ड एसेट तो है, बट इंटेंजेबल है, क्योंकि गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच। लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में जाएगा, तो ये सभी सब हेडिंग थी। मेजर हेडिंग क्वेश्चन में पूछी नहीं गई थी, इसलिए नहीं लिखी गई। Question 3. Under what head and subhead the following items will appear in a balance sheet of a company as per Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013? ओल्ड 1956 एक्ट होता है, न्यू 2013 एक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आइटम्स दिए हुए हैं, टैक्स रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, स्टोर्स एंड रिपेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लूज टूल्स, बैलेंस विद बैंक। आंसर देखिए सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन में। सीरियल नंबर 1 to 6, आइटम्स टैक्स रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, लूज टूल्स, बैलेंस विद बैंक। कैश का बैलेंस है बैंक के साथ। चूंकि मेजर और सब हेड पूछे गए थे, इसलिए आपको दोनों ही लिखना होंगे। तो टैक्स रिजर्व का मेन हेड होगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हेडिंग में शेयर कैपिटल और उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, तो मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स होगी और सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस होगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, interest is payable within 12 months, so it is current liability, and subheading other current liabilities,
क्योंकि नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस लायबिलिटीज। स्टोर एंड स्पेयर्स, वही कल पुर्जे, तो करंट एसेट हैं, मेजर हेड, और सब हेडिंग आएगी आपकी इन्वेंट्रीज। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस यानी कैश एट बैंक, सॉरी 2 स्किप हो गए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी कि अमाउंट पेबल मोर देन फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। चूंकि ये पेमेंट लॉन्ग टर्म में होता है इसलिए नॉन करंट लायबिलिटीज है। मेजर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लूज टूल्स, कलपोजे, करंट एसेट इनका मेजर हेड होगा और इन्वेंट्रीज इनका सब हेड होगा। बैंक बैलेंस विद बैंक यानी कैश एट बैंक करंट एसेट है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आपको मेजर और सब हेड देने थे क्वेश्चन के। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। Under which subheading will the following items will be shown in a balance sheet of a company as per revised Schedule 6 Part 1 of the Companies Act, or you can say Schedule 3 of Part 1 of Companies Act 2013. आइटम्स दिए हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडमार्क, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, एक्रूड इनकम। चूंकि सब हेडिंग ही बताने थे इसलिए सब हेडिंग बताए जा रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा मेजर और सब हेड दोनों बताने की। स्टोर्स एंड स्पेयर्स करंट एसेट मेजर हेड होगा, इन्वेंट्रीज सब हेड होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी पेबल विद इन 12 मंथ्स तो करंट लायबिलिटीज होगा, अदर करंट लायबिलिटीज सब हेडिंग होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट होगा, इंटेंजिबल एसेट होगा, ट्रेडमार्क्स फिक्स्ड एसेट होगा, इंटेंजिबल एसेट होगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स नॉन करंट लायबिलिटीज होगा, एक्रूड इनकम करंट लायबिलिटीज होगा, करंट एसेट होगा, सॉरी करंट एसेट और सब हेडिंग होगी अदर करंट एसेट। Now there are some assignments.
इन क्वेश्चन के आप आंसर लिखेंगे नोटबुक कॉपी में और तैयारी करेंगे। हिंट मैं दे देता हूं आपको। नेम टू पार्ट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, तो टू पार्ट उसके एसेट और लायबिलिटीज होते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी एक पार्ट है और एसेट्स उसका दूसरा पार्ट है। नेम द मेजर हेड्स अंडर विच द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो इसके अंदर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज टॉप पर है, फिर शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, फिर करंट लायबिलिटीज है। ये आपके पार्ट हैं जिन मेजर पार्ट्स में इक्विटी एंड लायबिलिटीज डिवाइड होती है किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट की। थर्ड क्वेश्चन, नेम द मेजर हेड्स विच अपीयर इन द एसेट पार्ट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट। तो एसेट पार्ट में एसेट मेजर हेड्स रहती है जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट में अंदर टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट, देन करंट एसेट में डिफरेंट करंट एसेट्स, अप टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। Question number 4. Name the major heads which appear in the equity and liability part of the balance sheet. तो इसके अंदर आपके वही आंसर आएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज। नेम द हेड्स अंडर विच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेडिंग्स में ही आते हैं एसेट साइड की टोटल हेडिंग्स हैं आपकी फिक्स्ड एसेट में 2 आपके टेंजेबल इंटेंजेबल, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन करंट एसेट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेडिंग में ही आएंगे। नेम द हेड अंडर विच गुडविल अपीयर इन अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ दिखाई जाती है? आंसर फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट में गुडविल को शो किया जाता है। तो ये आपका सेकंड वीडियो था, पार्ट 2 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पूरा फोकस, योर होल फोकस शुड बी ओवर द फॉर्मेट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी के फॉर्म की बैलेंस शीट को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। चाहे तो मैं एक बार फिर से आपको पूरी ब्रीफ कर दूं कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में टॉप पर हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी,
इक्विटी एंड लायबिलिटी के जस्ट नीचे शेयर होल्डर फंड, देन शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसमें दो होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज, इसमें भी दो होंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यहाँ पर आके आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड ओवर होता है। फिर आपका हेडिंग देना है एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट रहेगा आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के दो पार्ट होंगे, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी ये सब टेंजिबल हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट ये इनटेंजिबल हैं। इस तरह से दोनों आ जाएंगे। देन अगली हेडिंग आती है इन्वेस्टमेंट्स। यूजली इन्वेस्टमेंट अकेला लिखा रहता है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही इस हेड में ले जाएंगे। अगली हेडिंग आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स लाइक ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्रीज। ट्रेड पेबल्स include debtors and bill receivable, short-term borrowings provided by the company to other companies, short-term loans and advances, then cash and cash equivalents। तो इस तरह से आपका ये कंपनी का पूरा फॉर्मेट होता है। इस पर पूरा फोकस करें। यदि आप अच्छी तरह से फॉर्मेट को रीड कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो आपको बनेगा। ओके, थैंक यू।